Hello students, here we will solve the numerical based on the kinetic energy. So we will see how we will solve the numerical and how we will apply the formula. Student, first of all we need to know the formula. That formula was kinetic energy equal to 1 upon 2 mv square. Okay, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object. So kinetic energy depends on the mass and velocity of the object. So let us see the first example, that is an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? Possessed means वो कितनी kinetic energy है उसके पास. That is known as the possessed. Okay. So let us see. Here we have the mass of the object and velocity of the object. We know the formula that kinetic energy equal to 1 upon 2 mv square. Okay. So we will put the value one by one. 1 upon 2, value of m is 15, value of v is 4, and the square, it is saying the square of v, then it means we will write 4 2 times. Okay, so we can also cancel it out, that 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. Okay, it will be 8, and 8 15 ja, it will be 120 joule. Okay, so that object has 120 joule kinetic energy. It was the first question, very easy question. So let us see the another question. The question is what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour. Okay, if the mass of the car is 1500 kg. Okay, it is saying that we are increasing the velocity of the car फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर. पहले तो स्टूडेंट हमें यही देखना है, इनके यूनिट पे ध्यान देना है. ओके, सो ये तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, सो वी हैव टू चेंज इट. किलोमीटर पर आवर से हमें किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में. ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग द MKS सिस्टम and that is also SI system. We are not using the KMPH. Okay, kilometer per hour not using we are. So here we will change it in meter per second. So let us solve it. We have the mass of the object that is 1500 kg and the initial velocity ये थी 30 किलोमीटर पर आवर, जिससे बढ़ाकर हम जा रहे हैं 60 पे. ओके, तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर पर सेकंड में. तो सबको हम पहले किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं और आर को सेकंड में बदल देते हैं. सो 30 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. दो बार 60 क्यों किया? एक बार 60 करेंगे तो मिनट में आएगा, ये आर मिनट में हो जाएगा, और दूसरी बार 60 करेंगे तो 60 इंटू 60 इट विल बी इन सेकेंड. ओके, सो 2 zeros will cancel the 2 zeros. Okay, and this 3 it will cancel it 2 times. Okay, and in the top side we will get what? 100. Okay, and in the below we will get the 120. Okay, when we will solve it, we will not get 120, we will get only 12. Okay, when we will solve it, we will get the amount 8.33 meter per second. Next is, similarly the final velocity is 60 km per hour. When we will convert it, it will be 16.67 meter per second. Students, हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमने कुछ काम किया है उस पर. ओके, एंड दैट वर्क विल बी कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज वेलोसिटी बढ़ी है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा. तो देखते हैं क्या चेंज आया है. बच्चों, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी. ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे ई के आई से दिखा रखा है. आई मीन्स इनिशियल, स्टार्टिंग वाली, और यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे 1/2 mu स्क्वायर. 1/2 m की वैल्यू 1500 kg एंड u की वैल्यू 8.33 एंड इसका भी स्क्वायर निकालना है. व्हेन वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 52,041.68 जूल. इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी इन द इनिशियल फेज. ओके, जब गाड़ी कितने से जा रही थी? 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी. उस 30 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करके किस में कर दिया? 8.3 मीटर पर सेकेंड में.
Next is we will calculate the final kinetic energy. So the final kinetic energy of the car is EKF 1 upon 2. It will be mv square because v is the final velocity. 1 upon 2 1500 multiplied by 16.67 whole square. When we will solve it, we will get 2,08,460 16.68 जूल. इट विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, उसको 30 से 60 पे लेके गए. मतलब फोर्स तो हमने यहीं पे लगाया था इतने बीच में, मतलब इट विल कंसीडर सम डिस्टेंस ऑल्सो. सो मतलब हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया. तो वो वर्क कैसे निकलेगा, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी और जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी, उनके बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी होगी. और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी तरह होगी, वर्क डन की तरह होगी. इट मीन्स टू से दैट द वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज मतलब कितनी बदली है, तो मतलब बाद वाले में से पहली वाली घटा देंगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ओके, जब हम इसको घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,56,375 जूल. It is the kinetic energy which is required to change the position of the object, and it is also known as the work done. The next question is, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज 25 जूल. ध्यान रखो बच्चों, m गिवन है बट m की वैल्यू मिसिंग है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ m. ओके, सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स. मतलब एक बार हमें निकालना है जब इसकी वेलोसिटी को हमने v की जगह 2v कर दिया. एक जगह हमें निकालना है जब हमने v की जगह पे कितना कर दिया, 3v कर दिया, 3 टाइम्स. ओके, सो लेट अस सी. गिवन है वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड काइनेटिक एनर्जी 25 जूल. पहले हम निकालेंगे क्या, इसका मास निकालेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv². बच्चों ये फॉर्मूला वही है. इट इज, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, इट इज स्टिल सेम फॉर्मूला. सो लेट अस सी. वी नो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज 25. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ m. वी नो द वैल्यू ऑफ v. स्क्वायर है मतलब हम 2 बार 5 लिखेंगे, देन इट विल बी 2. लेट अस सॉल्व आउट. 5 5 जट इट विल बी 25. ओके, सो वी विल गेट समथिंग. जो भी यहाँ पे 25 आएगा वो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके, सो यहाँ पे नीचे आ चुका है और ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में. सो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 25. 25 विल कैंसिल 25 एंड मास विल बी 2 kg. मीन्स 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. अब हम इस पे स्टूडेंट दोनों केस लगा सकते हैं कि कब इसकी वेलोसिटी डबल हो रही है और कब ट्रिपल हो रही है. ओके, सो लेट अस सी दैट इन द फर्स्ट केस व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड, मीन्स जो 5 थी वो कितनी हो गई, 5 × 2 डबल यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. बट मास थोड़ी ना बदला, मास तो उतना ही है अभी भी. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv². m की वैल्यू 2 एंड v की वैल्यू 10. इट विल बी स्क्वायर ऑफ 10 अपॉन 2. ये तो फॉर्मूले का 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. 10 का स्क्वायर विल बी, द आंसर इज 100 जूल. ओके, फर्स्ट केस में जब हमने वेलोसिटी इसकी बढ़ाई तो क्या हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो गई जब हमने डबल की. ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 100 जूल विच इज़ 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी व्हेन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट्स 5 मीटर पर सेकेंड पे था तो 25 जूल था. जब 10 मीटर पर सेकेंड पे है तो 100 जूल है. मतलब ये बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी. और 25 का कितने टाइम है, 100 4 टाइम. मतलब जब, और ये 10 कितने टाइम था, ये 2 टाइम था. मतलब जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ गई. ओके,
तो ये हुआ पहले केस में. लेट अस सी द थर्ड केस. वो सेकंड केस इज व्हेन द वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम. जब वेलोसिटी 3 गुना बढ़ गई, मतलब 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड. न्यू वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज 2 kg. अगेन द फॉर्मूला इज 1/2 mv स्क्वायर. मास की वैल्यू तो फिक्स है, चेंज नहीं होगी. मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर अपॉन 2. 2 विल कैंसिल, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 जूल. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, कितनी गुना बड़ी है. 5 मीटर पर सेकेंड पे काइनेटिक एनर्जी थी 25 जूल. अब तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया. अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 25 जूल. ओके, so we can clearly see that 15 is 3 times, okay, of 5, and 225 is how much time, 9 times. Means what, कि जब हम काइनेटिक एनर्जी जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं या डबल करें या फिर ट्रिपल करें, उसकी क्यूब निकाल दो, उतने गुना कर दो उसका. ठीक है, काइनेटिक मतलब क्या है, 3 का क्यूब, 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा, 9 बनेगा. इस 9 से अगर मैं 25 में मल्टीप्लाई कर देता तब भी मेरा आंसर आ जाता. ओके, सो कहने का मतलब है अगर हम जितनी वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो लेट अस सी. 5 का 3 टाइम्स था 15, 25 का 9 टाइम्स है 225 जूल. ओके, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज 3 टाइम्स, then its kinetic energy becomes 225 joule, which is 9 times the kinetic energy when the speed is 25 meter per second. So it was asking in the question that what will be its kinetic energy when its velocity is doubled. उस केस में क्या होगी, उस समय होगी कितनी, 100. और what will be its kinetic energy when its velocity increase 3 times, उस समय होगी 225 जूल. कंपेयर किससे करना है, पहले वाली से 25 जूल से. 25 का ये कितने टाइम है, 4 टाइम, और ये कितने टाइम है, 9 टाइम. ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी.